friends, welcome to my channel IELTS Achievers. Today I am going to talk about writings, how to score 7 plus bands in your writing with an effective introduction. It's often that we get a question. जब भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, what we do, we just start planning and generating ideas for that question. But have we ever bothered about introduction? What to write in introduction? Introduction is very important in your essay because it's the first impression that you set towards your examiner. Examiner को पहला impression आपकी introduction से मिलता है कि how is your essay going. तो essay में introduction लिखना बहुत important है. Introduction कैसे लिखनी है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. So let's start with the video. I have two formats of writing introduction with me. The first one is writing two statements, the first one being rephrase or paraphrasing the question and the second one is thesis statement. अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी that what do I mean by paraphrase and rephrase and what is thesis statement. अभी आप इतना समझिए कि या तो इसको 2 लाइन्स में लिख सकते हैं या इसको 3 लाइन्स में लिख सकते हैं. The second format for this is first line is the punchline or we call it as hook statement. That is some people call it as general statement. The next line is rephrase of the question and the third line is thesis statement. I prefer this format. क्यों? क्योंकि जब हम पंचलाइन ये वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो हमें पंचलाइन या हुक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है. अब पंचलाइन और हुक स्टेटमेंट में हम ज़्यादातर कहते हैं कि एक जनरल स्टेटमेंट लिख दीजिए बट समटाइम्स दिस जनरल स्टेटमेंट डज नॉट मैच विद योर क्वेश्चन. जो क्वेश्चन दिया होता है उसके साथ ये मैच नहीं करती तो वो टास्क रिस्पॉन्स में हमारे बैंड जो है वो नीचे चले जाते हैं. सो व्हाट इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग एन इंट्रोडक्शन इज टू फॉलो this pattern wherein you need to write either 2 or 3 lines which contains the first line being rephrasal of the question or paraphrasing the question and the second being thesis statement, right? अब rephrase और paraphrase क्या होता है ये हम डिटेल में सीखेंगे और करते कैसे हैं इसको. I'll tell you the 3 steps of paraphrasing or rephrasing the question. So rephrase means क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में लिखना. जो आपको क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है पेपर में उसको आप अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट कर लेते हो इन इंग्लिश ओनली बट क्वेश्चन के वर्ड्स अलग होते हैं लेकिन मीनिंग उनका सेम होता है. सो रिफ्रेज मीन्स राइटिंग क्वेश्चन इन आवर ओन लैंग्वेज. इंग्लिश में ही हमने लिखना है क्वेश्चन को, उसकी लैंग्वेज बस चेंज कर देनी है, मीनिंग रिमेनिंग द सेम. अब अपनी लैंग्वेज में इसको लिख कैसे सकते हो आप? We have 3 ways of writing it. First way है हम words के synonyms add कर देते हैं. Synonyms means the word having the same meaning. जैसे अगर question में दिया हुआ है आपको students, आपने अपने आंसर में जो लिख दिया उसका word वो change कर दिया pupils. So this is a synonym for students. तो आपने क्या कर दिया? लैंग्वेज को चेंज कर दिया आपने, राइट? आपने क्वेश्चन को एज इट इज नहीं लिखना. क्वेश्चन का जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको अपने फॉर्म में लिख लेना है. उसको कैसे लिख सकते हो? इस 3 वेज में. फर्स्ट पे इज सिनोनिम. सिनोनिम यूज किया हमने वर्ड्स का. ऐसे ही अगर आपको आ जाता है टीचर तो टीचर का आप सिनोनिम यूज करोगे मेंटर. Clear? So first way is the use of synonyms. Moving on to the second way. Second way is changing the form of sentence. जो आपको sentence दिया हुआ है उसकी आपने form change कर देनी है. What do I mean by changing the form of a sentence is if the question is given in active voice, change that question in passive voice. For example, if your question says that tourism plays a vital role in countries in a country's
development. So the question prompt is tourism plays a vital important role in a country's development. कि टूरिज्म से बहुत फायदा होता है कंट्री की डेवलपमेंट में. इसको आपने अपने आंसर में इंट्रोडक्शन में कैसे लिखना है? दिस इज एन एक्टिव वॉइस. मैं सेंटेंस की फॉर्म चेंज कर दूंगी. आई विल ब्रिंग इट इन पैसिव वॉइस. कैसे? इन अ कंट्रीज डेवलपमेंट ये मैंने आगे लिख दिया. इन अ कंट्रीज डेवलपमेंट वाइटल रोल इज प्लेड बाय टूरिज्म. सो ये एक्टिव वॉइस में था दैट टूरिज्म प्लेज अ वाइटल रोल. इसको मैंने पैसिव में कर लिया. Vital role is played by tourism. I hope I'm clear with this changing in the sentence form. Moving on to the next one. The next is changing the form of the word. Third way of rephrasing your statement is to change the form of the word. For example, in question, I am given the word travel. ट्रेवल वर्ड मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है. वॉट आई विल डू इट इन द आंसर इज मैं ट्रेवल को कर दूंगी ट्रैवलिंग. मैंने क्या कर दिया? वर्ड वही रखा, बस उस वर्ड की फॉर्म को चेंज कर दिया. क्लियर? So this is a way of rephrasing the question. We'll be dealing with 3 examples. क्वेश्चन दूंगी, उसके साथ आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी. देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. सो आई होप आई एम क्लियर विद ऑल द 3 ways of writing, of paraphrasing the question. Moving on to the thesis statement. Now, thesis statement is your opinion or your answer to the question. एग्जाम में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, डू यू एग्री और डिसएग्री. तो थीसिस स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे कि आप उसके साथ एग्री करते हो या उसके साथ डिसएग्री करते हो. क्लियरली आप मेंशन कर दोगे दैट आई एग्री टू द स्टेटमेंट. कि जो आपने क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है मैं उस स्टेटमेंट के साथ एग्री करता हूं. राइट? ये तो होगी एग्री डिसएग्री की स्टेटमेंट. यही अगर आपसे पूछा जाए डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड. कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और साथ में आपसे पूछ लेते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड. तो उस केस में आप थीसिस स्टेटमेंट क्या देंगे? थीसिस स्टेटमेंट मींस कि आप क्या डिस्कस करने जा रहे हो अपने पूरे एसे में. राइट? दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड एट द एंड. तो आप क्या कहोगे? दिस एसे shall discuss the merits and demerits of this trend. ट्रेंड जो भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में मैंने क्या कर दिया? सिर्फ एक लैंग्वेज चेंज कर दी. उसने क्वेश्चन में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बोला है, आई हैव चेंज इट इनटू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. आई होप आई एम क्लियर विद द थीसिस स्टेटमेंट फॉर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. ऐसे अगर आपको आ जाता है डिस्कस बोथ द व्यू पॉइंट्स, राइट? तो उसमें आपकी थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी? दिस वन, दिस एसे शैल डिस्कस बोथ द व्यूज. कि ये ऐसे में क्या करने जा रही हूं मैं कि ये ऐसे डिस्कस क्या करेगा? दोनों व्यू पॉइंट्स. एंड अगर इसके साथ क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस बोथ द व्यू पॉइंट्स एंड गिव योर ओपिनियन, तो इसमें क्या आ जाएगा? दिस एसे शैल डिस्कस both the views along with my opinion.
बहुत ही सिंपल वे में आपने अपनी इंट्रोडक्शन लिखनी है ताकि वो क्लैरिटी में आए आपकी इंट्रोडक्शन, बिल्कुल क्लियर हो कि आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या लिखना चाहते हो, एग्जामिनर को क्या बताना चाहते हो, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपको टास्क एक्चुअल में है क्या, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसका मतलब आपको पता चल गया है। ठीक है, सो द सिंपलेस्ट वे ऑफ दिस इज I'm just summarizing whatever I have told, the way I have told. It's rephrase और paraphrase. पहली लाइन में आपने अपने क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, लैंग्वेज को मॉडिफाई मोल्ड करके लिख देना है बस जो क्वेश्चन में पूछी गई है। उसके हमारे पास 3 वेज है, सिनोनिम्स ऐड करो, फॉर्म ऑफ सेंटेंस चेंज कर दो या फॉर्म ऑफ द वर्ड चेंज कर दो, राइट। देन इज थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट मतलब आपने क्वेश्चन में जो पूछा गया है एंड वाला क्वेश्चन उसका आंसर देना है। ठीक है, सो इट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन आस्क्ड, राइट। एंड believe me, with this you will be definitely getting a 7+ in your writing task too. This is a personal experience. I generally do this. So this is a question which I have on the board. I'll be telling you how to write the introduction for this. Let's understand the 4 parameters on which your essay is judged. I'll be making a detailed video on the parameters, but for now let's just have a brief अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दीज पैरामीटर्स आर। वो कौन से 4 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आपका ऐसे जज होता है, उसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगी। बट फॉर द टाइम बीइंग हम देखते हैं, जस्ट थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या 4 पैरामीटर्स और कैसे एग्जामिनर जज करता है आपको, राइट। उसके बाद ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, राइट। सो द फर्स्ट पैरामीटर इज टास्क रिस्पॉन्स, TR, टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या आपने उसका ही आंसर दिया है या आप कहीं और भटक रहे हो। Either you have given the answer to whatever is asked or you have distracted from your path, you have deviated from your path। ठीक है जी, तो ये चेक करता है टास्क रिस्पॉन्स। जनरली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि मैम ऐसे अच्छा आया था, बहुत इजी था और हमने सारा ऐसे बहुत अच्छी तरीके से लिखा, हमने वोकैबुलरी भी डाल दी, हमने ग्रामर के सारे तरीके के सेंटेंसेस यूज कर लिए, हमारी तरफ से बहुत अच्छा हुआ है। बट व्हेन द रिजल्ट्स कम इट इज जस्ट 6.5, तो वो 6.5 पे रह जाते हैं, दे डू नॉट क्रॉस 7 बैंड्स। क्यों? बिकॉज द रीजन इज दे हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली। टास्क रिस्पॉन्स नहीं मीट हुआ। टास्क रिस्पॉन्स है क्या कि एक्चुअल में, जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज। क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया है कि ट्रैवलिंग टू अदर कंट्री के बेनिफिट्स बताओ, किसी और कंट्री में। और अगर आपने पूरा ऐसे बहुत अच्छी वोकैबुलरी लिख दिया, आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी डाल दिए, पूरे ऐसे में आपने क्या लिखा है, एक जनरल सा आपने लिया है ट्रैवलिंग के बेनिफिट्स, उस पर आपने सारा ऐसे लिख दिया, तो आपका टास्क रिस्पॉन्स नहीं कंप्लीट हुआ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आपने ट्रैवलिंग के बेनिफिट्स बताने हैं, जनरल में नहीं बताने, आपने कहाँ बताने हैं, अदर कंट्रीज में ट्रैवल करने के बेनिफिट्स। आई होप आई एम क्लियर विद द टास्क रिस्पॉन्स। एक डिटेल्ड वीडियो जरूर मैं इस पर बनाऊंगी, सो वो देख लेना आप एक बार। Next is CC. CC means coherence and cohesion. Coherence and cohesion, how well your paragraphs are linked to each other and how well your sentences are linked to each other. Then is lexical resources. Lexical resources is the kind of vocabulary you have used. ये नहीं है कि आप बहुत fancy words use कर दो और जिसका मतलब आपको पता नहीं है। So lexical resources is using the correct word at the correct place. The next is grammatical range. Grammatical range मतलब आपने कितने वेरिएशन के सेंटेंसेस यूज किए हैं, which include simple, complex, compound, active, passive, question sentences. So all the sentences are covered in grammatical range. Grammatical range plus accuracy, और आपने कितने accurately इन sentences को यूज किया है। नाउ लेट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर है कि किन किन पैरामीटर्स पे आपका ये जज होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है एक,
हम इस क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये 4 पैरामीटर्स मीट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट. Some people think that secondary school students should study academic subjects such as history and physics. कुछ लोग सोचते हैं कि सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए. कौन कौन से? जैसे हिस्ट्री और फिजिक्स. ये एक ग्रुप ऑफ पीपल ये सोच रहे हैं कि उनको एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए. while others believe that they should study practical subjects such as car machinery and cookery. एक अलग ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि सोचता है कि उन्हें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए. अब देखो, ये उन्होंने मेन आपको स्टेटमेंट दे दी. क्लियर? क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने? लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन इज डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. ये उन्होंने हमें क्वेश्चन दे दिया. नाउ लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट द इंट्रोडक्शन कैन बी. अब हम पहले क्या करते हैं, वैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम फटाफट पॉइंट सोचने लग जाते हैं, आइडियाज सोचने लग जाते हैं. इट्स गुड टू थिंक ऑफ आइडियाज बट एट द सेम टाइम यू नीड टू थिंक ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑल्सो. इंट्रोडक्शन वेरी सिंपल इन 2 sentences. 2 sentences. First one is the rephrase or paraphrasing of the question. कैसे करनी है? synonyms यूज करो, सेंटेंस की फॉर्म चेंज करो, वर्ड्स की फॉर्म चेंज करो. The second is thesis statement. वो हम अभी बनाएंगे. So let's begin with the answer to this question. So let's start writing the answer. So यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है. I want to change it into passive form. ये एक्टिव फॉर्म दी हुई है मेरे को कि सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स को एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए. मैं क्या कह रही हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है. मैंने सेंटेंस की फॉर्म चेंज करनी है. व्हाट आई विल डू, ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बना दूंगी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दूंगी. कैसे? पहले हम इस पे आते हैं. ये है सम पीपल थिंक. पीपल की जगह मैं अब सिनोनिम यूज करूंगी. व्हाट आई विल से, सम इंडिविजुअल्स. सिनोनिम यूज कर लिया मैंने. वेरी वेल, आई हैव changed the word with its synonym, that is individuals. अब think. think का synonym opine. कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग अपना विचार इस तरीके से देते हैं. So some individuals क्योंकि people है यहाँ पे plural, so some individuals opine that. what they opine? मैं अब पैसिव फॉर्म में करने जा रही हूं. ओपाइन दैट academic subjects, ब्रैकेट में जो चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो लिखनी जरूरी है. सच एज, जो 2 दिए हुए हैं हमें, हिस्ट्री एंड फिजिक्स. Some individuals opine that academic subjects such as history and physics should be studied by secondary school students. अब सेकेंडरी को मैं एज इट इज रख के स्कूल का सिनोनिम यूज कर लूंगी और स्टूडेंट्स का सिनोनिम यूज कर लूंगी. should be studied by secondary school का synonym alma mater. should be studied by secondary alma mater. students का synonym learners. So very well, I have used the synonyms as well as I have changed the form of the sentence. मैंने क्या कर दिया? Some individuals opine that academic subjects such as history and physics should be studied by secondary alma mater learners.
ये लाइन हमारी अब कंप्लीट होगी। मैंने अब नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होना है। नेक्स्ट लाइन क्या है? कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट के लिए एक मैंने कनेक्टर्स की वीडियो बनाई हुई है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट वीडियो। आई विल गिव द लिंक फॉर दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब भी हमें कंट्रास्ट करना होता है तो हम कनेक्टर्स यूज करते हैं, वेयर एज, हाउएवर। सो इस तरह के कनेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट कंट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है, वाइल अदर्स। कुछ लोग इस तरह सोचते हैं पर कुछ लोग इस तरह भी सोचते हैं। सो वाइल अदर्स बिलीव दैट दे शुड स्टडी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सच एज दिस एंड दिस। ठीक है, अब इन्होंने अपनी सेंटेंस की फॉर्म सेम रखी है, बट वी नीड टू शो दैट yes we have grammatical range, we have a range of sentences that we can use. तो पहले में हमने क्लियरली दिखा दी कि हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दी। अब हमने क्या करना है? फुल स्टॉप हटा दीजिए। मैंने ऐसे ही सेंटेंस को कंटिन्यू कर दिया। वहां पे वाइल है, आई हैव यूज्ड वेयर एज, वेयर एज के बाद कॉमा, वेयर एज अदर्स है, वेयर एज अदर्स। अब यहाँ पे ओपाइन यूज कर लिया मैंने, यहाँ पे मैं यूज करूंगी वेयर एज अदर्स थिंक दैट। क्या सोचते हैं बाकी लोग कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। मतलब प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? एकेडमिक को ना देकर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को देनी चाहिए। सो इसको मैंने एक वर्ड एड ऑन कर दिया, प्रेफरेंस। सो वेयर एज अदर्स थिंक दैट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू स्टडी, दे शुड स्टडी की जगह पे मैंने इसको रीफ्रेज कर दिया कि इस तरफ झुकाव ज्यादा इस तरफ होना चाहिए। एकेडमिक सब्जेक्ट्स को ना ध्यान में देते हुए ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को ज्यादा वेटेज देनी चाहिए। सो व्हाइल अदर्स थिंक दैट प्रेफरेंस should be given to practical subjects. ओके, सब्जेक्ट्स को भी मैं, सब्जेक्ट्स का भी मैं सिनोनिम यूज कर लूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एकेडमिक सब्जेक्ट्स यूज कर लिया है। तो इसको मैं प्रैक्टिकल के साथ सब्जेक्ट्स की जगह क्या यूज कर सकती हूँ? डिसिप्लिन्स। So preference should be given to practical disciplines such as, आप मेंशन कर दीजिए वहां पे, such as जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, this and this. So ये मेरा फर्स्ट पैराफ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। इसके बाद हमने देनी है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्वेश्चन का जो आपका लास्ट वाला सेंटेंस है, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। ठीक है जी। अब इसको हमने अपने वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखना है? दिस essay shall discuss both the sides. व्यू ऑलरेडी दे दिया है तो हमने साइड कर लिया कि दोनों साइड्स, एक ये साइड है, एक वेयर एज के बाद वाली साइड है. This essay shall discuss both the sides and my viewpoint accordingly. कि ये ऐसे दोनों साइड्स को डिस्कस करेगा, ये ऐसे दोनों साइड्स को डिस्कस करेगा और मेरा व्यू पॉइंट क्या है वो भी ऐसे में बता देगा. हमने बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन लिख ली. लेट्स सी कि ये पैरामीटर्स पे खरी उतरती है कि नहीं. टास्क रिस्पॉन्स. फर्स्ट इज टास्क रिस्पॉन्स. क्या हमने वही लिखा है जो क्वेश्चन में कह रहे हैं? यस, हमने वही लिखा है जो क्वेश्चन में कह रहे हैं, बस हमने सेंटेंस की फॉर्म चेंज कर दी. हमने वही कहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए बच्चों को. कौन से बच्चों को? सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को. और कुछ लोग सोचते हैं कि उनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए.
जो हमने आंसर में कहा है वही क्वेश्चन में है. दैट मीन्स कि हमारा टास्क रिस्पॉन्स फुलफिल हो गया. कोहेशन एंड कोहेरेंस. कोहेशन एंड कोहेरेंस ये ज़्यादातर हम बॉडी पैराग्राफ्स में देखते हैं क्योंकि जनरली वो पैराग्राफ्स थोड़े से बड़े होते हैं. इसमें इतनी कोहेरेंस एंड कोहेजन देखने को नहीं मिलती. Moving on to the next parameter, that is lexical resources. Lexical resources is the range of vocabulary you have. So very well we have shown the examiner that we have many words to express ourselves. People की जगह individuals, opine use किया हमने, then alma mater use किया, learners use किया, then disciplines use किया, साइट्स यूज किया. सो हमने एग्जामिनर को दिखा दिया कि हमारे पास वोकैबुलरी है, हमारे पास सिनोनिम्स है. ग्रामेटिकल रेंज. ग्रामेटिकल रेंज इज द काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू आर यूजिंग. एक्टिव था, पैसिव फॉर्म में चेंज कर दिया. सो यस वी हैव ग्रामेटिकल रेंज. ग्रामेटिकल रेंज ज़्यादा क्लियर होती है बॉडी पैराग्राफ में क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे सेंटेंसेस होते हैं, 5 to 6 सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्लियरली पता लग जाता है कि हमने अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस यूज़ किए हैं. सो आई होप ये आपको क्लियर है कि कैसे इंट्रोडक्शन हमने लिखी. राइट, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल, इट विल बी मोर क्लियर टू यू. So the next example will be written on the board. Question लिखती हूँ, then we'll start writing the answer for that. Next question which I have on the board is nowadays आजकल more people are traveling to other countries. ज़्यादा लोग ट्रेवल कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में. That means कि जो पहले नंबर था लोगों का ट्रेवल करने का, अब उस नंबर से ये ज़्यादा हो रहा है. More people are traveling. Why is this the case? ये क्यों हो रहा है? Is it a positive or negative? Positive है या negative impact for the countries they travel to? जिन countries में travel कर रहे हैं लोग, उन countries के लिए ये positive है या negative है, ये हमने discuss करना है अपने answer में. Right? So let's start writing the introduction for it. Introduction कैसे बताया है? जो question की first line है उसे हमने rephrase करना है. ठीक है जी. So let's start it. Rephrase कैसे कर सकते हैं? Either synonyms or changing the form of the sentence or changing the form of the words. Now, nowadays मतलब आजकल. ठीक है. So इसको मैं कैसे change कर सकती हूँ? In today's era. आजकल. ठीक है जी. In today's era. More people में मैं क्या लिख सकती हूँ? ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा लोग. ठीक है. So I may write आजकल there is a ज़्यादा लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं. There is a rapid growth in the number of what? Number of people. Number of people की जगह number of individuals. So मैंने more people को कैसे लाइन में चेंज कर दिया? दैट देयर इज अ रैपिड बहुत तेजी से किसी चीज का इंक्रीज होना. रैपिड ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है. क्या चीज बढ़ रही है? इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं. सो इन टुडेज एरा देयर इज अ रैपिड ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ट्रैवलिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है अदर कंट्रीज. यहाँ पे मैं क्या चेंज कर दूंगी कंट्रीज का? टू अदर नेशंस. Now see what I have done is I have used the synonyms, the similar phrases, right, for saying the same thing in
the other language in the modified language. ठीक है जी, कैसे किया मैंने? Nowadays को in today's era there is a rapid growth in the number of individuals, more people, there is a rapid growth. Traveling to other countries की जगह nations. हो गया रीफ्रेज हमारा ये, ठीक है, पैराफ्रेजिंग हो गई इसकी. नाउ जस्ट सी कि इसमें हम टास्क जो दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, उससे इधर उधर नहीं हुआ है. वी आर वेरी सेफ विद यूजिंग द सिनोनिम्स. हमने सिनोनिम्स यूज करके बहुत सेफली अपने टास्क रेस्पॉन्स को मीट कर लिया. सो इससे डर नहीं रहता कि हम इधर उधर जाएंगे. अगर यही हमने हुक स्टेटमेंट या पंच लाइन लिखनी होती तो हम ट्रैवलिंग पे लिखते. दैट मे हैव लाइक कि वो ऐसे होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने ऐसे से, राइट. सो इट्स बेटर टू जस्ट स्टार्ट विद पैराफ्रेजिंग वॉट एवर द क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू, राइट. नाउ द नेक्स्ट लाइन, व्हाई इज दिस द केस. अब क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों है, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस. नाउ वी राइट दिस essay shall discuss, क्या पूछ रहे हैं डायरेक्टली, वाई इज द केस, रीजंस क्या है. सो दिस essay shall discuss the reasons for what, reasons for increase in traveling, right. Reasons for increase in traveling. इंक्रीज इन ट्रैवलिंग में जनरल इंक्रीज हो रहा है. अगर हम यहाँ पे छोड़ देते हैं तो हमारा टास्क रेस्पॉन्स पूरा नहीं होगा. हमने क्या कहा, दिस essay shall discuss the reasons for increase in traveling. ट्रैवलिंग अब हमने जनरल बात कर दी, जनरल बात नहीं करनी. हमने स्पेसिफिकली वही चीज देनी है जो क्वेश्चन में पूछी गई है. This essay shall discuss the reasons for increase in traveling to other countries. Yeah, increase in traveling to foreign countries. ठीक है, आप फॉरेन कंट्रीज भी यूज कर सकते हो, ओवरसीज भी यूज कर सकते हो, या इंक्रीज इन ट्रैवलिंग अब्रॉड भी यूज कर सकते हो. सो हमने क्या किया, फिर से व्हाट वी हैव यूज्ड इज सिनोनिम्स यूज कर लिया हमने. ट्रैवलिंग टू फॉरेन कंट्रीज और ट्रैवलिंग ओवरसीज और ट्रैवलिंग अब्रॉड, राइट. सो ये हमारा हो गया स्पेसिफिक कि हमने टास्क रेस्पॉन्स को फिर से कंप्लीट कर दिया. अगर हम ट्रैवलिंग पे छोड़ देते तो उससे क्या होना था, एग्जामिनर को लगना था कि आप जनरल में दे रहे हो कि वैसे ट्रैवलिंग क्यों इंक्रीज हो रही है, जबकि हमारा क्वेश्चन ये है ही नहीं कि ट्रैवलिंग क्यों इंक्रीज हो रही है. हमारा क्वेश्चन है कि ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज क्यों इंक्रीज हो रही है. आई होप आई एम क्लियर विद ऑल वॉट एवर आई एम सेइंग, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट. अब आपसे डायरेक्टली आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है. आप क्या सोचते हो कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है उन कंट्रीज पे जिस पे लोग जा रहे हैं. सो अपना ओपिनियन प्रेजेंट करने के लिए या तो आप सिंपल लिख सकते हो इन माय ओपिनियन या फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, कि जो मैं सोचता हूं या सोचती हूं उसके अकॉर्डिंग क्या चीज है. फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. नाउ योर चॉइस, यू विश टू राइट पॉजिटिव और नेगेटिव. फॉर कंट्रीज दे ट्रेवल टू, कंट्रीज दे ट्रेवल टू, जहां पे वो ट्रेवल करते हैं वो कौन सी कंट्रीज होती हैं, दे आर नोन एज होस्ट कंट्रीज. फिर से हमने इसको एक फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज द होस्ट कंट्रीज. फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, होस्ट कंट्रीज आर
पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब उनको बेनिफिट हो रहा है, तो मैंने वर्ड यूज किया है बेनिफिटेड. होस्ट कंट्रीज आर एनॉर्मसली मतलब बहुत ज्यादा, enormously benefited by this trend. From my perspective, मैं जो सोचती हूँ, मेरे ओपिनियन में होस्ट कंट्रीज जो हैं, जिन कंट्रीज में ट्रेवल किया जा रहा है, होस्ट कंट्रीज आर एनॉर्मसली बहुत ज्यादा, हेवीली बेनिफिटेड बाय दिस ट्रेंड. इस ट्रेंड से, किस ट्रेंड से? जो ऊपर हमने बोला है, ट्रैवलिंग टू फॉरेन कंट्रीज. ठीक है जी. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन फॉर दिस क्वेश्चन. टास्क रिस्पॉन्स मैंने पहले आपको बता दिया. यस, वी आर मीटिंग ऑल द कंडीशंस ऑफ टास्क रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने जहां पे भी डील किया, हर जगह पे हमने डील किसके साथ किया? ट्रैवलिंग टू अदर नेशंस. और क्या डील किया है कि ये ग्रोथ हो रही है. ठीक है. लेक्सिकल रिसोर्सेज. हैव वी यूज्ड एनफ वर्ड्स टू शो दैट यस वी हैव वैरायटी ऑफ वर्ड्स, वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी? यस. रैपिड ग्रोथ, individuals, right? Then nations, then perspective, increase in traveling, foreign countries, overseas, abroad, enormously, benefited. These all are the words which we have used, जो हमने vocabulary के words use किए. So yes, हमने lexical resources की भी डिमांड पूरी कर दी. ग्रामेटिकल रेंज वही मैंने बताया था, वो जनरली बॉडी पैराग्राफ्स में दिखती हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस होते हैं. आई होप आई एम क्लियर विद हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है अपने एस्से में, और इसको प्लान करना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो बहुत ईजी वे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखनी बता दी. सिर्फ 2 या 3 सेंटेंसेस जो क्वेश्चन में पूछा गया है, बस क्वेश्चन से हिंट लो और उसको एज इट इज उतारने के बजाय उसके सिनोनिम्स यूज करो. सो दिस इज द इजीएस्ट वे, जिससे आप ऑफ ट्रैक नहीं जाते अपने एस्से में, राइट? सो this was all about how to write an effective introduction that would definitely fetch you 7+ bands in your writings. Believe me, just follow this pattern and score high bands. I hope you enjoyed watching this video, and I hope this video was enlightening for you. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and hit like the notification bell so that you get notified whenever I post a new video. Thank you for watching.